ایک جانب ہمارے پرابلمز ہیں، دوسری جانب ہماری مخالفت میں ایسی سرکاریں، عدالتیں بھی ہیں اور میڈیا بھی ہے جو ہماری نوجوان نسل کا ذہن بہت زیادہ خراب. بڑی پرابلم تو ایجوکیشن ہے، اور ایجوکیشن کے بہانے سے لڑکیاں مسلم لڑکے جو ہیں امپریس کرتے ہیں لڑکیوں کو، اور اس کے بعد جو ہے وہ لڑکیاں مرتد ہونے کے لیے تیار. جو بھی کروں گی مجھے اس کو اللہ کو جواب دینا ہے، میں صحیح کروں گی یا غلط. اور جب وہ ایجوکیشن لینے جا رہی ہیں تو جس مقصد کے لیے گھر سے نکل رہی ہیں اسی مقصد کو وہ لوگ حاصل کرنے کے اوپر توجہ دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، اس وقت میں عمارت شریعہ پھلواری شریف پٹنہ میں ہوں، اور ہمارے ساتھ آل انڈیا مسلم ویمنس ایسوسیشن سے منسلک کچھ خواتین ہیں جو سوشل ریفارمیشن اور سماجی اصلاحات کی سمت میں بڑا کام، بڑی خدمت انجام دے رہی ہیں. حضرت امیر شریعت سے ملاقات کے لیے یہ تمام خواتین تشریف لائی تھی. میں سبوں کا استقبال کرتا ہوں. ہمارے کیمرامین کیمرے کی لینس اور کیمرے کی آنکھ سے پہلے آپ سبوں کے سامنے ان حضرات کا تعارف کرائیں گے، اور اس کے بعد میں سبوں سے بات کرنے کی کوشش کروں گا. کچھ ہماری آل انڈیا مسلم ویمنس ایسوسیشن کی ممبرز ایسی ہیں جو پہلے سے متعارف ہیں. ڈاکٹر اسما زہرا صاحبہ ہیں، حیدرآباد سے ان کا تعلق ہے. میں نے 2018 میں ان کا انٹرویو کیا تھا. انٹرویو کا موقع دوسری بار مل رہا ہے، لیکن ملاقات کا موقع اس سے پہلے مل چکا ہے. میں سب سے پہلے انہی سے سوال لے لیتا ہوں. آپ ابھی پٹنہ تشریف لائیں، یہ پرانا عظیم آباد کہلاتا تھا. ابھی جیسا کہ گفتگو میں باتیں سامنے آئی، اب یہ پٹنہ ہے، اور ماشاءاللہ آپ تقریباً 2.5-3 ہزار کلومیٹر کا سفر طے کر کے اور پورے ہندوستان کا چکر آپ کاٹتی ہیں. یہ تحریک کہاں سے آپ کے اندر پیدا ہوئی؟ کیوں ایسی نوبت آئی؟ کیا چیز ایسی ہے جو آپ کو ان تمام کوششوں اور جد و جہد کے لیے مجبور کرتی ہے؟ یہ سب سے پہلی چیز تو ہمارے پاس ہمارا جو دین ہے، اسلام ہے، اس میں جو تعلیمات ہیں اس میں اتنا زیادہ خیر ہے اور خوبیاں ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں اس کی معلومات بہت کم ہیں. بہت زیادہ بہنوں کو اس دین سے جوڑنے کی ضرورت ہے. اور آج کل کے جو مسائل ہیں، چاہے ہماری تعلیم سے دوری ہو، جہالت ہو، غربت ہو، سماج میں برائیاں ہوں، ان سب کی اصلاح بھی وقت کی اہم ضرورت ہے. کیونکہ ایک جانب ہمارے پرابلمز ہیں، دوسری جانب ہماری مخالفت میں ایسی سرکاریں، عدالتیں بھی ہیں اور میڈیا بھی ہے جو ہماری نوجوان نسل کا ذہن بہت زیادہ خراب کر رہا ہے. تو ہم لوگ آل انڈیا مسلم ویمن ایسوسیشن کے تحت تعلیم میں، اصلاح معاشرے میں اور تحفظ بنت المسلم، لڑکیوں کے تحفظ کے لیے اور ترقی کی راہیں ان کو بتانے کے لیے کافی کیمپینز، پروگرامز رکھتے ہیں، ورکشاپس رکھتے ہیں. بہار ہم آئے ہیں، ہم مدھوبنی گئے، ململ اور اس کے ساتھ دربھنگا، کافی 5-6 پروگرامز ہوئے. ہزاروں کی تعداد میں خواتین وہاں شریک رہیں. ہمارا موٹو تھا ہمارا سماج ہماری ذمہ داری. تو خواتین کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں، لڑکیوں کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں، اور ان کو بتا رہے ہیں کہ ایز اے ممبر آف مسلم کمیونٹی، امت مسلمہ کے ایک فرد کی حیثیت سے آپ کی ذمہ داری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو قابل بنائیں تاکہ وہ مسائل کا بھی مقابلہ کر سکے اور ترقی کی راہوں پہ آگے بڑھ سکے. ماشاءاللہ بہت اچھا. ہمارے ساتھ یہاں پر ممدوحہ باجی ہیں، ان کے تجربے اس سے ہم فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلا سوال باجی آپ سے یہ ہے کہ آج ڈاکٹر اسما زہرا صاحبہ نے فرمایا، اس سمت میں اگر دیکھا جائے تو کیا آپ کے لحاظ سے ابھی موجودہ دور میں سب سے بڑی پریشانیاں لاحق ہیں جو ہمارے سماج میں خواتین کو برباد کرنے کے دہانے پہ لے کے جا رہی ہیں؟ پہلے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں نے باجی کہا، اور وہ باجی کا حق ادا کرنے کی کوشش میں کر رہی ہوں. سب سے بڑے، اور دوسری بات، آج کل کے جو میڈیا ہے وہ بہت ہماری بچیوں کو بگاڑ رہا ہے اور ہمارے دماغوں کو بھی بگاڑ رہا ہے. ہم میڈیا کے ایک طرح سے فوبیا ہو گیا ہمیں. تو ہم نے سوچا کہ یہ میڈیا جو کر رہا ہے اس کے برعکس ہم کچھ کریں جو اللہ اور رسول کو زیادہ پسند ہو. تو ہم نے ڈاکٹر اسما کے ساتھ میں لگ گئی، اور وہ جو وہ کام کر رہی ہیں، اور خاص کر کے ہماری ینگ لڑکیاں جو بگڑنے کے راہ میں ہیں، اکثریت تو نہیں، کچھ کم لڑکیاں ہیں جو بگڑ چکی ہیں. ان کو دیکھنے کے بعد میں نے سوچا کیا بڑے پرابلمز آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ سب سے بڑی پرابلم تو ایک تو یہاں، سب سے بڑی پرابلم تو ایجوکیشن ہے، اور ایجوکیشن کے بہانے سے لڑکیاں بگڑ رہی ہیں. وہ یہ سب سے بڑی بات ہے جس کو ہم نے دیکھا، اور اسی کو پر ہم عمل کر رہے ہیں کہ ایجوکیشن ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ
पर्दा भी बहुत ज़रूरी है, उसके साथ अखलाक बहुत ज़रूरी है, माँ बाप के साथ बिहेवियर बहुत ज़रूरी है, और आप रास्ता चलते हुए लड़कियां किस तरह से वो बिहेव करना चाहिए वो हमको सिखाना है इन बच्चियों को, यंग लड़कियों को। अल्लाह का लाख करम है, अभी जो डॉक्टर अस्मा ने कहा कि हम लोग आज ये दरभंगा और मलमल और ये सब नहीं, हम तो 10 साल से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 10-15 साल से हम बहुत पूरे हिंदुस्तान का हमने दौरा किया है, और अल्लाह का लाख करम है आज जो मैंने देखा तो लगता है कुछ दिल्ली से औरतें आई थी, ख़ास इसी मकसद के लिए आई थी, दिल्ली से आई थी, हैदराबाद से आई थी। आप सोचिए कि हमारे यहाँ जो यहाँ मजमा है उनमें वो लगाव है सीखने का। आप बाजी आप अपना नाम बता दें। जी मैं ज़ीनत हूँ और दिल्ली से हूँ। अच्छा माशाल्लाह, दिल्ली से हैं आप। दिल्ली ज़ाहिर है दारुल हुकूमत है, और इर्तिदाद की तरफ जिस तरह ख़वातीन, बल्कि अभी गुफ्तगू में ये बात आई सिर्फ औरतें नहीं मर्द भी, और वो सिर्फ लड़के लड़की के लिए, वो ज़ाहिरी जो एक इश्क़े मजाजी जिसको कहा जाए उसके लिए, इससे रोकने के लिए किस सम्त में आप लोग कैसे काम कर रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कम से कम 500 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें यंग गर्ल्स भी हैं, बच्चे भी हैं और बड़ी लेडीज़ भी हैं। तो उन लोगों को ये समझाया जाता है कि आप इख्तिलाफ से रुकें, और जो एजुकेशन के लिए कुछ अपनी ज़िम्मेदारियाँ, माओं की ज़िम्मेदारियाँ भी हैं कि जिस तरह शरीयत बताती है कि यंग गर्ल्स के लिए जो है आप साथ में जाएं, साथ में उनको लें, बच्चों को अकेला ना भेजें, अकेले ना छोड़ें। और हम लोग ना स्कूल जैसे कुरान की तालीमात हैं, अहादीस हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं और उनको बताते हैं कि देखिए शरीयत क्या है, दीन क्या है। तो दीन सिर्फ नमाज नहीं है, रोज़ा नहीं है, हज ज़कात नहीं है, बल्कि दीन पूरे कुरान में है, और उस शरीयत को और उसको जो है हमें नाफिज करना है अपने ऊपर इंशाअल्लाह। माशाल्लाह बहुत अच्छा। आपका नाम बाजी? शादाब कमर। कहाँ से तशरीफ़ लाई आप? मैं दिल्ली से। अच्छा, आप भी दिल्ली से आई। दिल्ली में आपको क्या लगता है कि मुसलमानों की का रहन सहन और जो समाज में जो चीज़ें चल रही हैं औरतों के बीच बिलखुसूस, वो कैसी हैं? मतलब लड़कियां अच्छे सम्त में हैं, ख़राब सम्त में हैं, क्या करने की ज़रूरत है आपके लिहाज से, क्या चीज़ें हैं? उन्हें बेदार करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक माहौल ऐसा बना दिया गया है कि एक लड़का लड़की की दोस्ती के लिए उन्होंने कई जगह ऐसा शुरू करा है कि नॉन मुस्लिम लड़के जो हैं इम्प्रेस करते हैं लड़कियों को, और उसके बाद जो है वो लड़कियां मुर्तद होने के लिए तैयार हो जाती हैं, जिससे हमें बहुत अफसोस होता है। और उन्हीं को हमें बेदार करना है कि हम किस तरह से उन्हें बेदार करके अपने मज़हब पे चला के उन्हें अपने मज़हब की अहमियत बताएं और उन्हें अपने पूरी तरह सच्चे पक्के मुसलमान बनाने की। माशाल्लाह। बाजी आप बताएं कि यानी औरतों को बाइख्तियार बनाने का मतलब आपकी नज़र में मौजूदा ज़माने के लिहाज से क्या है? बाख्तियार का मतलब ये है कि जो सबसे पहले कि उसकी अपनी सोच हो, कि वो उसको सही और गलत की खुद समझ हो। अब जैसे हम सोचते हैं कि भाई लड़की को या और घर की औरतों को बंद कर देंगे, ये नहीं करो वो नहीं करो। पहले ये था कि पहले का कुछ माहौल था कि आप कर सकते थे। अब तो एक मीडिया और एक मोबाइल ने बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में आज़ादी दे दी है। तो कोई भी चीज़ से इंसान तभी बच सकता है जब वो खुद गलत को गलत समझे और सही को सही समझे, और उस पर उसका खुद दिल आ जाए। अब माँ बाप के डर से आप कितने दिन तक कर सकते हैं? तो मेन बाख्तियार बनाना है कि उसकी अपनी सोच डेवलप हो, और अपनी सोच जो इस्लामिक तौर से बाख्तियार बनाने का मतलब है कि उसको ये समझ में आ जाए कि मैं अपने हर अमल की ज़िम्मेदार हूँ। मैं जो भी करूँगी मुझे उसको अल्लाह को जवाब देना है, मैं सही करूँगी या गलत करूँगी। तो अगर वो एक माँ है और एक एम्पावर्ड माँ है तो उसको पता है कि हमको अपने बच्चे की तरबियत करनी है। हम अगर करेंगे तो हमको इस दुनिया में भी अजर मिलेगा, आखिरत में भी अजर मिलेगा। आपका नाम बाजी? अफरोज़ फातिमा जाफरी। ताल्लुक़ आपका? मेरा ताल्लुक़ बिहार से ही है, लेकिन मेरा भी रहना पटना में, यहाँ नोएडा में है। अच्छा, नोएडा में। अच्छा, आपका नाम बाजी? मैं दहनिया अतहर, आपका ताल्लुक़? हैदराबाद। जैसा कि अभी बाजी ने बताया कि ख़वातीन को बाइख्तियार कैसे बनाना है, हुनर और तालीम ये चीज़ें, और तालीम को जिस सम्त में आजकल गलत ढंग से पेश किया जा रहा है, अभी बातें आई कि औरतें पढ़ लेंगी तो यानी हमारा एतमाद ख़त्म हो रहा है कहीं ना कहीं। बहुत सारे घराने आज भी ऐसे हैं कि जो पर्दे का एहतमाम करते हैं, अपनी बच्चियों को वो महफूज रखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पढ़ाने में डर लगता है हालात की वजह से। एक की वजह से सब लोग मुतासिर हो रहे हैं। इस पर आप कैसे समझाएंगे उन गार्जियन को, उन वालिदैन को? देखिए, सबसे पहले तो यह है कि
माँ बाप को अपनी तरबियत पे भरोसा होना चाहिए कि वो जो तरबियत दे रहे हैं वो बेहतरीन तरबियत है और कुरान और हदीस की रोशनी में दे रही हैं, और जिस तरीक़े का माहौल है उस माहौल के जो भी यानी फ़ायदे नुकसानात हैं वो भी बताना चाहिए। तो ये जब बताएंगे तो इंशाअल्लाह इस तरीक़े के यानी जो मामलात आ रहे हैं वो नहीं आएंगे। तो मेन चीज़ मेरा वो ये है कि घर का माहौल बेहतर हो, सेहतमंद हो, और बच्चों को भी अपने माँ बाप पर भरोसा होना चाहिए कि जो गाइडलाइंस दिए जा रहे हैं वो उन्हीं के मुताबिक चलें, और जब वो एजुकेशन लेने जा रही हैं तो जिस मकसद के लिए घर से निकल रही हैं उसी मकसद को वो लोग हासिल करने के ऊपर तवज्जो दें। ना ये कि माहौल का जो असर है उस असर में अपने आप को इन्वॉल्व करके अपने पेरेंट्स को धोखा दें, या फिर माहौल के असर में डूबकर वो गलत राह पर अपना लें। तो इस तरीक़े से वो बचें। तो अगर इस तरीक़े से वो बचेंगी और घर का जो माहौल है वो भी खुशगवार रहेगा, हेल्दी रहेगा, तरबियत का असर रहेगा, तो मैंने समझती हूँ कि हमारी जो तालिबात पढ़ रही हैं तो वो बाइख्तियार भी बनेंगी, उनको अच्छाई और बुराई की तमीज़ भी रहेगी, और वो सोसाइटी के लिए, ख़ानदान के लिए एक रोल मॉडल भी साबित होगी। माशाल्लाह। आपका नाम बाजी? मेरा नाम हुदा रावल है। आपका मैं मुंबई से हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। आप से मैं मुंबई के लिहाज से सवाल करता हूँ, अगर लड़के इस तरफ ख़राब हों किसी लड़की की वजह से, उसको आप कैसे समझाएंगे? अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जाएं, इस्लाम हमको क्या सिखाता है, उस दायरे में रहकर हमको देखना है कि इस्लाम हमको क्या दे रहा है। और अगर एक गाड़ी के दो पहिए हैं तो ऑब्वियसली है कि वो जो सवारी उस पर सवार करने वाला है उसको डिस्टर्बेंस होगा, वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो एक गाड़ी के दो पहिए नहीं रह सकते अलग अलग, ठीक है ना। अगर उसमें सवार होने वाले बच्चे कौन है? बच्चे ही है ना उसमें सवार होने वाले। अगर माँ का रिलीजन कुछ है, बाप का रिलीजन कुछ है, तो बच्चों का रिलीजन क्या होगा? तो अगर कोई लड़का इस तरह की हरकत करता है या लड़की इस तरह की हरकत करती, दोनों ही सरासर गलत है। हम किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, अगर कोई सोच के समझ के इस्लाम में मतलब आ रहा है, अपने आप को चेंज कर रहा है, तो मोस्ट वेलकम। लेकिन अब अगर आप किसी पर्टिकुलर एक की बात करेंगे तो इट्स देयर चॉइस। उन्होंने कुछ सेलिब्रिटीज़ को अपना रोल मॉडल बना लिया, लेकिन हमारा इस्लाम जो सिखाता है कि हमें इस्लाम के दायरे में रहना है, कुरान हदीस के हवाले से अपनी ज़िंदगी को गुजारना है, वही है। अच्छा, आपका नाम बाजी? जी, मेरा नाम निखत खान हुआ। आपका ताल्लुक? बिहार से, पटना से। अच्छा, पटना से है, माशाल्लाह। तो आपसे पटना के ताल्लुक से अगर सवाल किया जाए कि क्या जिस तरह हैदराबाद में डॉक्टर अस्मा जहरा साहबा लीड कर रही हैं, माशाल्लाह, हैदराबाद में तमाम चीज़ों के बावजूद पर्दे का बड़ा एहतमाम है, आप बच्चों के अंदर निकाब, हिजाब, लेकिन इसमें एक जो नेगेटिव एस्पेक्ट है इसका ये है कि आज निकाब ऐसा आने लगा मार्केट में कि निकाब के ऊपर निकाब की ज़रूरत पड़ने लगी। मैं सही कह रहा हूँ मैडम? तो उस निकाब के बारे में आप क्या राय? आप सही बोल रहे हैं कि ऐसा निकाब आ गया है कि इसके ऊपर से एक और निकाब चाहिए, ठीक है। लेकिन हमको ये देखना है कि इस्लाम में क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। निकाब आखिर होना चाहिए ना, जैसे निकाब है तो टाइट है, तो ये चीज़ें हमारे इस्लाम में नहीं है कि वो टाइट हो, ठीक है। तो मेन मकसद क्या है हमारा नकाब पहनने का, वो मकसद हमको पता होना चाहिए। तो वो मकसद हमको पता होता नहीं है, और हम नकाब भी पहनते हैं तो ऐसे पहन लेते हैं जो कि बिल्कुल लगता है कि वो नकाब ना ही पहने तो वो अच्छा है। तो मकसद हमको मालूम नहीं होता, फिर हम नकाब पहनते हैं। लेकिन हमको जब मकसद पता होगा कि इस्लाम ने हमको नकाब पहनाया ही क्यों है या दिया क्यों है, तब हम वो उसके मकसद को हम पूरा करते हैं। तो कैसा होना चाहिए, तो हमारा नकाब कैसा होना चाहिए, जब हम इस कुरान पढ़ते हैं तो हमको पता हो जाता है कि किस तरह से हमको ढक के निकलना है। तो ये ज़रूरी है कि हमको मकसद पता होनी चाहिए। माशाल्लाह। अब आखिरी दो सवाल, एक चूँकि डॉक्टर अस्मा जहरा साहबा इतनी दूर से आई, लीड कर रही हैं, और ममदूहा बाजी चूँकि माशाल्लाह हम सब की बड़ी हैं और बेपनाह मोहतरम हैं, ये हम सब की निगाह में। दो आखिरी सवाल कि उलमा तबका वो एक उम्मत एक जमात की बात करता है, हम एक उम्मत एक जमात है। क्या अगर कोई ऐसा मुसलमान जिसका मैं अगर नाम लिए बगैर आपको बोलूं जो मुजाहिद सिफत हो, अब वो किसी भी मुल्क से यहाँ आ जाए, तो क्या आप उसको अपना कायद मानेंगी या नहीं मानेंगी? देखिए, असल में पहले तो दिल में एहतराम और इज़्ज़त होनी चाहिए, किसी एक शख्सियत का मामला नहीं है ये। पूरा का पूरा आप अगर देखेंगे कि नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट बहुत ज़्यादा खिदमत रही हैं इमारत की। हमने भी ज़मीनी सतह पे काम किया है। अभी हम दरभंगा गए थे
تو لوگوں نے ہم کو کہا کہ دیکھیے ہمارے پاس یہ کورٹ اور کچہری جانے کا مسئلہ نہیں ہے اور ہماری عورتیں سیدھا پولیس اسٹیشن نہیں لے جاتی ہیں گھر کے معاملات. تو ہم نے پوچھا کیا وجہ ہے, تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے پاس عمارت ہے, تو جو بھی ہمارے ازدواجی تنازعات ہے, خاندانی تنازعات ہے, جو بھی گھریلو جھگڑے ہیں, ہم عمارت لے جاتے ہیں. تو ایک تحفظ اور ڈھال ہے. تو اس حالات میں, اس دور میں جب مسلمانوں کی شناخت اور ان کی پہچان اور ان کی آئیڈینٹی پر حملے ہو رہے ہیں, ایسے وقت میں ملی ادارے جو ہیں یہ ہمارے لیے قیمتی اثاثہ ہیں, اور اس میں جو خدمات انجام دے رہے ہیں یہ معمولی بات نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. تو اس وقت ہمارے ساتھ آل انڈیا مسلم ویمنس ایسوسی ایشن کی کچھ اہم ذمہ داران اور ممبرز موجود تھیں, جن سے ہم لوگوں نے مختلف امور پر, خواتین کے مسائل پر, خواتین کے پردے پر, ارتداد کے موضوع پر تفصیل کے ساتھ کھل کر بات چیت کی. کیمرامین محمد دلشاد کے ساتھ فضل رحمہ رحمانی, امارت شریعہ, پھلواری شریف, پٹنہ. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلع